Hello dear students, good evening. Welcome to English Kingdom. Today we are going to begin the second part of the lesson Indigo. The first part we have already completed. If you have not yet gone through the first part of this particular lesson, so I'm going to put the link in the description of this video. From there you can reach on the first part as well. And I'm your teacher Deepak Juneja, and let's begin the second part of this lesson Indigo. As we came to know in the first part that Gandhiji, who was in Lucknow convention to participate in Indian National Congress convention there, a peasant came to him. The name of the peasant was Rajkumar Shukla, and he asked Gandhiji to come to Champaran to solve the problems of peasants. But Gandhi had no time. But Rajkumar Shukla was very resolute, and wherever Gandhi went, he followed Gandhi everywhere. So at last Gandhi had to give the time, and before going to Champaran, Gandhi went to Muzaffarpur, and there he wanted to collect the facts regarding the problem of peasants, because Rajkumar Shukla was not able to give him the complete detail. So like a good reader and like a good leader, he wanted to understand the problem completely first. And then he reached to Champaran. In Champaran, he practiced the civil disobedience. This term you need to be introduced with, civil disobedience. The spelling is civil and CIVIL, and disobedience is DISOBDIENCE. This is the word here. You can see this word. I will show you. Civil disobedience. Okay, whenever it comes I will show you. सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है शासन की अवज्ञा. मीन्स वट एवर द एडमिनिस्ट्रेशन सेज वी शैल नॉट फॉलो दैट. सो बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड और ही एक्सपेरिमेंटेड that particular term civil disobedience in Champaran, so obviously he had to be penalized for that, and a case was filed against him in the court, and where the magistrate heard him properly, and he could not give him any punishment for that, and at last he had to make him free, and he was asked to apply for bail, but he did not. So at last the case against him was dropped. तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. ये जहाँ पर हमने फिनिश किया है वही चीज़ आ रही है कि the case against Gandhi ji was dropped. और who informed about this particular information? The lieutenant governor of the province. Province कहते हैं एरिया को. उस पर्टिकुलर एरिया के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वहाँ के जो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनके खिलाफ जो केस था वो ड्रॉप कर दिया गया. सिविल डिसओबीडियंस, देखिए वी वर सर्चिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेज हियर एंड देयर, एंड दिस वाज हियर ओनली ऑन दिस पेज ऑन सिविल डिसओबीडियंस. दिस हैड ट्रिम्प्ड मीन्स वॉन. सिविल डिसओबीडियंस जीत गया था. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था. एंड दिस वॉज वेरी क्रूशियल. This was very important because civil means administration. You were going to disobey the administration. Whose administration was it? It was the administration of the British people, and already Indians were very much afraid of these British people. So just to disobey them, to collect courage for that also was important. And Gandhi showed all the people that you need not follow or obey all these people. You may disobey them also. आप उनको disobey भी कर सकते हैं. We have the courage. हमारे पास में courage है. हालांकि although he was not asking the people to go against the administration. गांधी सभी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहे थे. His purpose only was to make people free of the fear. वो लोगों को केवल डर से मुक्त करना चाहते थे. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Grievances कहते हैं complaints. Far-flung inquiry का कहते हैं, far-flung inquiry का मतलब होता है deep inquiry. तो गांधी और जो lawyers थे उन्होंने एक deep inquiry की farmers की grievances के लिए, farmers की जो शिकायतें थी उनके लिए एक deep inquiry की. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Depositions कहते हैं statement. Means 10,000 peasants
gave their statement. 10,000 किसानों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए एंड नोट्स वर मेड, और नोट्स बनाए गए दूसरे एविडेंसेस के ऊपर भी, दूसरे जो एविडेंस थे उनके ऊपर भी नोट्स बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉब्ड विद मीन्स फुल विद, पूरा का पूरा एरिया जो था वो एक्टिविटी से भरा हुआ था. किसकी एक्टिविटी? द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हु आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड द वहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. और जो लैंडलॉर्ड्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो विरोध चल रहा था, वहीमेंट कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, ट्रमेंडस, खतरनाक जो प्रोटेस्ट चल रहा था लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ. तो इस तरह से पूरा का पूरा एरिया इन एक्टिविटीज से भरा हुआ था. इन्वेस्टिगेटर्स जो थे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जो पीजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे. इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. मीन्स गांधी वाज आस्क्ड टू अपीयर बिफोर Sir Edward Gate, who was the Lieutenant Governor of the province. Before he went, he met leading associates and again led detailed plans for civil disobedience if he should not return. So before going to him, he consulted all his companions, all his lawyers, सभी lawyers को इकट्ठा करके और सभी लोगों को इकट्ठा करके, then he made a detailed plan for next step of civil disobedience. Because there were chances that he would be arrested, क्योंकि chances ऐसे हो सकते थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. गांधी had 4 protracted interviews. Protracted कहते हैं longer than usual, यानी जितना यूजुअली टाइम लगता है इंटरव्यूज़ में. इंटरव्यूज़ का मतलब है मीटिंग में जितना टाइम लगता है उससे भी ज़्यादा लंबी मीटिंग चली गांधी जी की. 4 मीटिंग हुई. किसके साथ? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. And an outcome has to come of the meeting का कुछ ना कुछ outcome तो आना ही था. तो what was the outcome, what was the result? एक official commission of inquiry बिठाया गया इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशंस को समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब इस कमीशन में कौन कौन लोग थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी. As the sole representative of the peasants, he was the only one person who was representing the peasants. वो केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो peasants को represent कर रहे थे. बाकी जितने भी लोग थे वो सभी तो सरकार के ही थे. Landlords obviously English people थे. Government officials they also were completely devoted और completely जिसे कहते हैं उनकी जो लॉयल्टी थी वो सरकार के प्रति थी. तो गांधी was alone, जबकि लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक तरफ थे. सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर ही वाज गोइंग थ्रू. आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना प्रेशर रहा होगा गांधी जी के ऊपर. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. अनइंटरप्टेड, ये इंटरप्ट से वर्ड बना है. इंटरप्ट से बनता है इंटरप्शन कहते हैं डिस्टर्बेंस को. अनइंटरप्टेड का मतलब वो अनडिस्टर्ब्ड पीरियड ऑफ 7 months. मीन्स इनिशियली ही रिमेन्ड देयर for continuous 7 months and then again for several shorter visits. और उसके बाद में उनका आना जाना लगा रहा. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. तो जो visit की गई थी casually means ऐसे ही casual तरीके से, on the entreaty कहते हैं रिक्वेस्ट विद इमोशन, सीरियस रिक्वेस्ट विद इमोशन. यानी एक अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड मीन्स इलिटरेट, अनपढ़ पीजेंट की रिक्वेस्ट पर जो एक विजिट की गई थी कैजुअली, इस उम्मीद में दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि ये कुछ दिनों की होगी. इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया. मीन्स गांधी नेवर थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू चंपारण and his visit to Champaran or his stay at Champaran would take so much time. गांधी जी ने ये कभी नहीं सोचा था. He was expecting the visit to continue only for 2 or 3 days. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. So official inquiry, they did their meetings. They did their discussions and evidence was put before them. बड़े जो evidence उन्होंने इकट्ठे किए थे. लास्ट में पूरी की पूरी जो कमीशन था, they agreed, कमीशन के सभी members
एग्री हो गए इन प्रिंसिपल का मतलब सैद्धांतिक रूप से इस चीज़ पर एग्री हो गए कि द पीजेंट्स शुड गेट देयर रिफंड्स, कि पीजेंट्स को पैसा वापस मिलना चाहिए. बट द अनदर क्वेश्चन वाज दैट हाउ मच मस्ट वी पे. लेकिन द क्वेश्चन इज कि देना कितना चाहिए. अब ये अगर देना ही है उनको तो दे शुड नॉट आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कितना देना है ये वाला क्वेश्चन उनको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि अगर दे आर वेरी ऑनेस्ट तो दे शुड पे. बट दे वांटेड टू हिंडर द मैटर. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मैटर को उलझा कर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि हम दें कितना. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उनकी ओपिनियन क्या थी ब्रिटिश लोगों की? ब्रिटिश लोग इसलिए क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और एक ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे. उन्होंने सोचा कि गांधी वुड आस्क फॉर द फुल पेमेंट. गांधी जो है पूरा पेमेंट मांगेंगे जो उन्होंने इकट्ठा किया है. किससे? शेयर क्रॉपर्स से. इन सभी ने इलीगली, गैरकानूनी तरीके से, डिसीटफुली कहते हैं धोखे से. एक्सटोर्टेड का मतलब ज़बरदस्ती पैसा वसूल करना. ही आस्क्ड ओनली 50%, बट गांधी डिड नॉट आस्क फॉर 100%. ही आस्क्ड ओनली 50%, केवल 50% पैसा मांगा. देयर ही सीम्ड एडमेंट. एडमेंट मीन्स डिटरमिन्ड. वहाँ वो बिल्कुल पूरी तरह से डिटरमिन्ड दिखाई दिए, यानी 50% चाहिए तो 50% चाहिए. Writes Reverend J. Jed Hawes, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. ये कौन लिखते हैं? ये रेवरेंड जो है, ये ऑनरेबल जो वर्ड होता है उसी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अधिकतर ये जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. तो जे जेड हॉज ये एक ब्रिटिश प्रीस्ट थे चंपारण में, जिन्होंने पूरे एपिसोड को काफ़ी पास से देखा था. तो उन्होंने बताया कि गांधी जी 50% पर तो बिल्कुल अड़ गए थे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. तो अब ये जो प्लांटर्स थे, दे प्लान्ड अ न्यू थिंग. उन्होंने एक नई चीज़ प्लान की और उन्होंने 25% का ऑफ़र किया. उनको मालूम था कि गांधी जी 50% पर अड़े हुए हैं और अगर 25% वो ऑफ़र करेंगे तो इट वुड क्रिएट लॉन्ग इम्पास. इससे एक लंबा गतिरोध क्रिएट हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम लंबी खींचती रहेगी और उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा. बट व्हाट हैपेंड? मिस्टर गांधी took him at his word. मिस्टर गांधी agreed on 25%, thus breaking the deadlock. और इस तरह से जो गतिरोध चल रहा था उनके बीच में वो पूरी तरह से टूट गया. This settlement was adopted unanimously by the commission. Unanimously means by all people. इस सेटलमेंट को सभी ने अडॉप्ट कर लिया, यानी सभी ने मान लिया. गांधी एक्सप्लेन. नाउ गांधी हियर गिव्स द रीजन कि व्हाई डिड ही एग्री ऑन द रिफंड ऑफ 25% ओनली. यहाँ पर गांधी जी ने उसका रीजन दिया है. एंड इन एग्जामिनेशन आल्सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम हियर कि व्हाई डिड गांधी एग्री ऑन द रिफंड ऑफ 25% ओनली. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट. कि जो अमाउंट रिफंड हो रहा था वो इम्पोर्टेंट नहीं था. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इन पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लैंडलॉर्ड्स को पैसा वापस देना पड़ा और उसी के साथ साथ में उनकी इज्जत भी गई. बिकॉज प्रीवियसली दे यूज्ड टू कलेक्ट मनी. पहले वो लोगों से पैसा लिया करते थे और लोगों पर हुक्म बजाया करते थे. बट नाउ दे हैड टू गिव द मनी. लेकिन इस बार उनको पैसा देना पड़ा और इस तरह से उनकी जो प्रेस्टीज थी, जो उनका फियर था, जो उनका रिस्पेक्ट था, वो सब चला गया. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और एज फार एज पीजेंट्स का सवाल है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. तो उनके साथ में जो ये प्लांटर्स थे, प्लांटर्स मीन्स लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने कानून से भी ऊपर उठकर बिहेव किया था. द पीजेंट्स सा, लेकिन अब पीजेंट्स को समझ में आया कि दे आल्सो हैड देयर राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके भी अपने अधिकार हैं और उनको भी डिफेंड करने वाले लोग हैं. किनको समझ में आया? पीजेंट्स को समझ में आया. ही लर्न्ड करेज. ये जो ही वर्ड यूज़ किया गया ये एक पीजेंट के लिए यूज़ किया गया और ये एक पीजेंट सभी पीजेंट्स को रेफर करता है. तो पीजेंट्स को भी समझ में आया कि उनके अधिकार हैं और उन्हें डिफेंड करने वाले लोग भी हैं. उनके मन से डर मिट गया और उनके मन में साहस पैदा हुआ. तो that's why the refund of 25% was more important.
Refund was not important actually. The important thing was that the British people, means the British planters, had to surrender their prestige, and now the peasants were fully confident and they were not fearful of anything, and they realized that they had rights and defenders as well. Events justified Gandhi's position, और गांधी का जो ये सोचना था ये बिल्कुल सही था. उसके बाद की जो घटनाएं हुई वो गांधी की पोजीशन को बिल्कुल सही जस्टिफाई करती हैं. विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट्स. ब्रिटिश प्लांटर्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के वहाँ से भाग गए. अबंडन का मतलब छोड़ देना. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स को वापस लौटा दी गई थी. तो ये उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में थी ही नहीं. प्रॉपर्टी तो इन्हीं किसानों की ही थी, लेकिन इन पर इन ब्रिटिश प्लांटर्स ने अधिकार कर लिया था, जो वापस उन्होंने छोड़ दी. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, एंड दिस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का पूरा मामला खत्म हो गया. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. गांधी जी का जो दायरा था अपनी पॉलिटिक्स का, वो केवल पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक चीज़ों तक ही सीमित नहीं था. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village. Now what did he do for the this cultural and social development of Champaran? ये हमें इसमें देखना है. गांधी जी ने चंपारण के कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या देखा. तो फर्स्ट तो ही नोटिस दैट कल्चरली एंड सोशली द पीपल ऑफ चंपारण वर सफरिंग अ लॉट एंड दे वर मच बैकवर्ड इन दैट वन, एंड ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम. और गांधी जी उनके लिए कुछ करना चाहते थे. तो व्हाट डिड ही डू? ही अपील्ड फॉर टीचर्स. पहली अपील उन्होंने टीचर्स से की. महादेव देसाई और नरहरि पारीख, टू यंग मैन who had just joined Gandhi as disciples. Disciples means students, शिष्य, and their wives, और उनकी wives भी. यानी इन दोनों व्यक्तियों, ये जो दोनों व्यक्ति थे गांधी जी के डिसाइपल्स थे, न्यूली बने हुए डिसाइपल्स थे, ये और इनकी वाइफ्स, ये सामने आ गई. वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इस काम के लिए सामने आ गई. कौन से काम के लिए? टीचिंग के काम के लिए. Several more came from Bombay, Pune and other district parts of the land. इसके बाद में तो बहुत सारे टीचर्स सामने आ गए. देवादास, गांधीज यंगेस्ट सन. देवादास जो गांधी जी का यंगेस्ट सन था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. मिसेस गांधी यानी जो कस्तूरबाई थी वो भी पहुंच गई. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस. 6 गाँवों के अंदर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए. कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. कस्तूरबाई जो इन आश्रम्स के अंदर लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में अवेयर करती थी, और कम्युनिटी सैनिटेशन. कम्युनिटी सैनिटेशन का मतलब होता है अपनी कम्युनिटी को कैसे साफ रखें, यानी ड्रेनेज सिस्टम को कैसे साफ रखें, घरों को, बाहर की सड़कों को कैसे साफ रखें. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स इन वेरी पुअर कंडीशन. गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. तो टीचर्स भी वॉलंटियर बेसिस पे आ गए और डॉक्टर भी वॉलंटरी बेसिस पे आ गया. एंड ही प्रिपेयर्ड टू वर्क फॉर 6 months देयर. और 3 medicines वर अवेलेबल देयर: कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. कैस्टर ऑयल तो आप जानते ही हैं. कुनेन इज अ मेडिसिन विच इज़ यूज्ड इन मलेरिया. कुनेन एक मेडिसिन है जो मलेरिया में यूज़ की जाती है. एंड दिस इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ वन प्लांट. द नेम ऑफ द प्लांट इज सिनकोना. ये सिनकोना नाम के एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है कुनेन की दवाई, मलेरिया में यूज़ की जाती है. एनीबडी हो, ये सल्फर ऑइंटमेंट, जितनी भी आप स्किन क्रीम यूज़ करते हैं फोड़े फुंसी के लिए, उनमें सल्फर ज़रूर होता है. सल्फर ऑइंटमेंट, और वो उन्हीं को ही, फोड़े फुंसियों की क्रीम को ही यहाँ पर सल्फर ऑइंटमेंट बोला गया है. एनीबडी हु शॉड ए कॉटेड टंग, जिसको भी कॉटेड टंग की प्रॉब्लम होती उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता है. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, उसे कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता है. एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, जिसको थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम हो रही होती, उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. यानी कैस्टर ऑयल वाज प्रेजेंट एवरीवेयर. कैस्टर ऑयल सब जगह प्रेजेंट था, और एक तरह से ये एंटीबॉडी भी होता है प्लस सॉल्यूबल के रूप में भी काम करता था. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लोथ्स. फिल्दी मीन्स डर्टी, बहुत गंदी स्टेट थी औरतों के कपड़ों की. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. वन वुमन took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have."
तो एक औरत ने कस्तूरबाई को अपनी पोजीशन भी दिखाई विच क्लियरली इंडिकेटेड अबाउट हर पॉवर्टी। उसका कहना था कि उसके पास में कोई बॉक्स नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है क्लोथ्स के लिए, और जो साड़ी वो पहन रही है वही साड़ी उसके पास में है, तो वो कैसे सैनिटेशन का ध्यान रख सकती है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. तो जब चंपारण में गांधी जी बहुत लंबे समय के लिए रुके, तो he had many ashrams also throughout India and he kept a close look at them also. और वो डिस्टेंस यानी काफ़ी दूर से उन पर भी वॉच करते थे। He sent regular instructions by mail. By mail का मतलब by email नहीं है, by mail का मतलब by post. And asked for financial accounts. और सभी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. Means Gandhi was not limited only to some of very good things, या जिसे आप कह सकते हैं कोई बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते थे। He used to talk about even basic things also, like here he is talking about latrine trenches. Latrine trenches क्या होते हैं? टॉयलेट्स के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, उन गड्ढों के अंदर जितना भी वेस्टेज होता है टॉयलेट्स का, जितना भी एक्सट्रैक्ट होता है वो सारा उसी के अंदर इकट्ठा होता है, लैट्रिन ट्रेंचेस। तो उनका कहना था कि जो पुराने लैट्रिन ट्रेंचेस हैं वो भर गए हैं, अब नए खोदने का समय आ गया, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट डन देन द ओल्ड ट्रेंचेस वुड स्टार्ट टू स्मेल बैड। तो पुराने ट्रेंचेस जो है बदबू मारने लग जाएंगे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Now, it's a very good question which comes in examination. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बड़ा सर्टेन क्वेश्चन है। How was the Champaran episode a turning point for in Gandhi's life? या how did Champaran episode prove to be a turning point in Gandhi's life? So, how it was? What I did, he explained, was a very ordinary thing. गांधी जी का कहना है कि जो मैंने किया बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने सिर्फ इतना ही डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश लोग मुझे मेरे देश में ऑर्डर नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफाई, ये डिफाइंस जो वर्ड है डिफाई से बना, DEFY। डिफाई का मतलब डिसोबे करना, यानी चंपारण ने केवल डिसोबेयंस का ही सीन नहीं देखा, मतलब डिसोबेंस का वही सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। बल्कि इसने जो बहुत सारे पुअर पीजेंट्स थे उनके डिस्ट्रेस को, उनकी जो टेंशन थी उसको उससे ऊपर उनको उठाने का प्रयास किया। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। His politics were intervened with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो बड़े बड़े बातों के साथ में नहीं होती थी, वो प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ में। इंटरवेंड का मतलब होता है मिक्स्ड थी। His was not a loyalty to abstractions, यानी उनकी लॉयल्टी जो थी मीन्स वो जो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए नहीं करते थे। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। वो अपनी जितनी भी पॉलिटिक्स करते थे वो लिविंग ह्यूमन बींग्स के अराउंड करते थे, यानी सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे ऑनेस्टी की या सोशल सर्विस की, बट ही यूज्ड टू शो अदर पीपल दैट हाउ द वर्क इज डन। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. What was the effort of Gandhiji? He wanted to create a new Indian out of the old Indian. वो हर एक पुराने इंडियन से एक नया इंडियन निकालना चाहते थे जो डरता नहीं है, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर इंडिया को आज़ाद करवा सकता है। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma. Pacifist कहते हैं one who works for world peace, जो दुनिया की शांति के लिए कोशिश करता है उसे pacifist कहा जाता है। What was the name of this pacifist? Charles Freer Andrews. And how he was devoted to Gandhiji? He was a devoted follower of Mahatma Gandhi. वो गांधी जी का एक devoted follower बन गया था। Came to bid Gandhi farewell. वो गांधी जी को बाय बाय कहने आया बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, क्योंकि उसकी ड्यूटी चेंज हो गई थी फिजी आइलैंड्स में, अब उसे अपॉइंट कर दिया गया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम।
गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा दिस इज़ अ गुड आइडिया, एंड्रयू को यहीं चंपारण में रोक लेते हैं और उसकी हेल्प लेते हैं इस चंपारण के बैटल के लिए। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड एंड्रयूज आल्सो शोड हिज कंसेंट कि इफ गांधी एग्रीड देन ही वुड लाइक टू जॉइन हिज टीम, बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज्ड, अपोज मीन्स अगेंस्ट, बट गांधी ने बुरी तरह से इस चीज़ का विरोध किया। ही वॉज जस्ट अगेंस्ट दैट, वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे। ही सेड यू थिंक दैट दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। आपको क्या लगता है दिस अनइक्वल फाइट का मतलब कहाँ ब्रिटिश लोग, उनके पास में इतनी ताकत है, उनके पास में इतना पैसा है, इस अनइक्वल फाइट में अगर हम इस इंग्लिशमैन को अपनी साइड में मिला लेते हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प अस। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। यानी वो ये कहना चाहते थे कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस अनइक्वल फाइट में अगर हम इस इंग्लिशमैन को अपनी तरफ मिला लें तो हम मजबूत हो जाएंगे। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी है, तुम डरते हो। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्स टू विन द बैटल। तुम्हें किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए हेल्प के लिए, रिलाई अपने आप पर भरोसा करो। ये रिलाई जो वर्ड है, रिलाई का मतलब भरोसा करना, और इसी रिलाई से ये वर्ड बना है आपका रिलायंस, RELIANCE। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्स टू विन द बैटल। अगर आपको युद्ध जीतना है तो अपने आप पे भरोसा करो। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप मीन्स हेल्प इन मिस्टर एंड्रयूज। मिस्टर एंड्रयूज में आपको जो है हेल्प नहीं ढूंढनी चाहिए, वो एक इंग्लिशमैन है इसलिए उसमें हेल्प की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट व्हेन हिज कंपेनियन आस्क्ड दिस वन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज टू जॉइन देयर टीम। सो गांधी ऑब्वियसली प्रोटेस्टेड फॉर दैट। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे माइंड्स को बिल्कुल करेक्टली पढ़ा था, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self-reliance. Self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. All bound together means connected with each other. ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी। शेयरक्रॉपर्स की अगर हेल्प नहीं होती तो कैसे लोगों में सेल्फ रिलायंस डेवलप होता? सेल्फ रिलायंस डेवलप नहीं होता तो हाउ कुड हैव इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? सो every big thing depends on small things. जैसा मैंने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था, जस्ट इमेजिन जर्मनी हैड नॉट डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, हैड जर्मनी नॉट डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, हाउ वाई देन राजकुमार शुक्ला वुड हैव कम टू गांधी टू आस्क फॉर हेल्प? क्यों तो वो गांधी जी के पास में हेल्प के लिए आते? वाई वुड हैव गांधी गो टू चंपारण? गांधी क्यों चंपारण में जाते? एंड देयर ही आल्सो रियलाइज्ड हिज ओन पोटेंशियल, उनको अपना खुद का भी पोटेंशियल वहाँ मालूम पड़ा। The people there also realized that they also had rights and defenders. They also came together, they got together, and at last India got freedom. So this was from second part. Thank you very much for watching. If you have any problem, please drop a comment in the comment box. Thank you.